अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 7. In our previous lecture we discussed about the art and realism. Within the art and realism we discussed about the artistic creativity, and we also discussed about the printed books and sculptures and architecture through which they depicted the change in the society, the change in the mindset of society, and the gradual slackening of the control of religion over the minds of people. Now today we'll be discussing about the new concept of human being as well as we'll be tracing out the aspirations of women of that time. Now when we talk of the three orders, in three orders we have we are discussing the changing cultural traditions. I still am sinking in the same three orders still. Now basically we are discussing the changing cultural traditions. In these cultural traditions we see that change in the mindset of people through the Renaissance and the humanistic philosophy, and we see that different developments are helping a person to achieve new heights to the coming day in the coming days. Now today we see the new concept human being. New concept of human being means now initially his mind was controlled, or his mind was trained or programmed by the religious teachings or by the clergymen, popes, bishops and the fathers. But now we see in the Italian states we see now the gradual slackening of the control of religion over the minds of people. Now that's the point, a new concept of human beings. Now ये नया concept क्या है यहाँ पर, ये हम इसका जो पहला point देखते हैं, that is the slackening of the control of religion over human life. अब ये जो religion ही आपकी life को control कर रहा था इससे पहले, now there is a gradual decrease, gradual slackening हम देखते हैं, control जो था वो कम हो रहा है. Now ये जो हम देख रहे हैं बेसिकली किस चीज़ की कमी आ रही है. इनिशियली व्हाट वी विटनेस इज दैट एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ, वर्च्यू, एक्वायरिंग ऑफ पावर एंड ग्लोरी वाज सीन एज समथिंग मटेरियलिस्टिक, सीन एज समथिंग इररिलीजियस. Now today, now in this very time we see that it was defended by the humanistic scholars who argued that there is no problem in acquiring money, wealth and power. What the problem is that you have created a kind of environment in the society where going for wealth, where going for power and glory is seen as something irreligious. तो यहाँ बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर्स जो है इन्होंने इस चीज़ पर आर्ग्यू किया कि रिलीजन जो है हमारी पर्सनल लाइफ्स में, हमारी पर्सनल जो हमारे चॉइसेस हैं उनमें इंटरफियर कर रहे हैं. हमारी पर्सनल जो भी है जो डिज़ायर्स है लाइफ में, उनमें रिलीजन को इंटरफियर नहीं करना चाहिए. रिलीजन शुड बी ए प्राइवेट अफेयर. रिलीजन शुड, a state should not have a religion. A religion should be something that is the private affair of a person rather than becoming public policy, rather than becoming a state religion where emperor dictates the religious dogmas and preach the religion. That should be stopped in a sense. तो यहाँ पर ये जो हम चीज़ देख रहे हैं कि slackening of control of religion over human life, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, इस चीज़ को डाउन किया जा रहा है, इस चीज़ को हम क्रिटिसाइज देख रहे हैं कि ये रिलीजन जो है इसको अपनी लाइफ में ज़्यादा अहमियत जो है ये नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, इटालियंस डिफेंडिंग द मटीरियल, वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी. नाउ ये चीज़ जो है, ये इटालियन जो है ना इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि इट डज नॉट बाय एक्वायरिंग वेल्थ, बाय गोइंग फॉर वेल्थ, ग्लोरी एंड पावर एंड अदर योर डिजायर्स एंड whims and wish, it does not make you, it did not make you irreligious person. ये आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं बनाता है कि जो दीन के खिलाफ हो. रादर अब इस टाइम पे जो ह्यूमनिस्टिक हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स या एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं, दे आर्ग्यूड और इसको एक वर्च्यू बता रहे हैं. नाउ वेल्थ वाज कंसिडर्ड इनिशियली एज अ काइंड ऑफ समथिंग एविल. Now in 16th century, by the interference of the humanistic scholars, what we witness is that wealth is considered now as a virtue. ये अब एक अच्छी चीज़ समझने जा रही है, और ये इस चीज़ अच्छी चीज़ ये लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं. आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट. यही हम देख रहे हैं इसमें. फ्रांसिस बारबोसा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमनिस्टिक हिस्टोरियन फ्रॉम वेनिस, who criticized
this mindset of acquiring wealth, and that will make you an irreligious person. Rather he defended, ये लिखते हैं ये जो acquisition of wealth है, पैसे जमा करना, ये क्यों गलत है? It is basically a good thing, ये virtue है. आपके पास जब पैसे अच्छे आएंगे तो आप अपने जो पर्सनल डिजायर्स है उनको आप फुलफिल कर सकोगे, आप हेल्प कर सकोगे नीडीज की, आप इस पैसे से और चीज जो है कंस्ट्रक्शन या दूसरे जो है अच्छे से काम कर सकते हो. बट वाई मेक इट समथिंग इवल? वाई वी वुड मेक इट समथिंग जो है क्रिश्चियनिटी में जो ये किस चीज को बताया गया है कि एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ एक ऐसे इंसान का काम है जो ग्रीडी हो, जिसमें लालच भरी हो. तो उस चीज को फ्रांसिस बारबोसा बहुत सिवियरली हम कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट द वे वी शुड लुक एट ए ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. यहां पर पोर्ट्रे हो रहा है. नाउ वेल्थ जो है ये तो नॉर्मल है, वेल्थ इज इंपॉर्टेंट according to Francis Barbosa. Now second important thing जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, that is Lorenzo Valla. इनकी एक बुक है Lorenzo Valla की, ये on pleasure है, इन्होंने लिखी है. नाउ ऑन प्लेजर में भी ये लिखते हैं कि ये ज़्यादातर स्टडीज़ की बात करते हैं, जैसे रिलीजियस स्टडीज़ पर ही ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए. अ ह्यूमन बीइंग a person should read other texts as well. He described the importance of history in his book on pleasure. He described history, that studying history basically makes a person perfect. Basically the history leads man to strive for the life of perfection. ये परफेक्शन की लाइफ अगर इंसान को गुजारनी है, देन ही और शी शुड रीड हिस्ट्री कंपल्सरीली. जो ये हिस्ट्री पढ़ना है, इट इज़ बेसिकली इंसान को सिखाता है आपकी इस जर्नी में कहाँ कहाँ कोई प्रॉब्लम्स हुई है, उनसे सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और उन गलतियों को न दोहराते हुए आगे बढ़ना सीखो. नाउ इस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा पैटर्नाइजेशन मिल रही है थ्रू द ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर्स. अब ये चीज़ जो है हिस्ट्री को यहाँ पर पैटर्नाइजेशन मिल रही है, एज वेल एज अदर साइंसेज जो वहाँ पर थे, मेडिकल साइंसेज और एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, वो जो है प्रोमिनेंस ले रहे हैं इस टाइम पीरियड में. नाउ इनिशियल थॉट्स जो थे वो अब चेंज हो रहे हैं. जैसे अगर आज भी हम विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो इससे पहले काइंड ऑफ हमारी सोसाइटीज़ में, क्योंकि कश्मीर की सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा ही बैकवर्ड रही है इन द टेक्नोलॉजिकल सेंस आई एम टॉकिंग, बट नॉट इन द कल्चरल और अदर सेंसेस. वहाँ पर हम देखते हैं ये इनिशियली वो हेडफोन्स लगाते थे या वो ईयरफोन वगैरह लगाते थे, उसको कंसिडर पहले हमारे अगर फादर फूफा ये जो होते थे, ग्रैंड फादर्स होते थे, वो इसको देखते थे एज समथिंग, ये जो है जो गलत लगाना है, ये क्यों लगा रहे हो, दैट वाज द साइन ऑफ वल्गरनेस एंड ऑल दैट. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आज हम उनको भी वो चीज़ें दे रहे हैं, वो भी उन चीज़ों को लगा रहे हैं, एंड दैट्स नॉर्मल टुडे. इट्स बेसिकली द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड बाय वी कैन से द चेंज इन द माइंडसेट थ्रू द एजुकेशन और वी कैन से द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी. नाउ यही चीज़ यहाँ यूरोप में भी 16th सेंचुरी में हो रही है. इस चीज़ को लोगों में आम किया जा रहा है कि ये जो है रिलीजन का ज़्यादा क्रिश्चियन डोगमास जो है, क्रिश्चियनिटी जो अपना ये क्रिश्चियनिटी की जो अपनी ये प्रैक्टिसेस हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में. दैट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ ए पर्सन, रादर रिलीजन जो है उसको पर्सनल ही रहना चाहिए, नॉट बिकम इन पब्लिक. नाउ यही टाइम पीरियड होता है जब हम देखते हैं ड्रेसिंग सेंस, जो हम देखते हैं गुड मैनर्स की बात, हमें जो टेबल रूट कुछ होते हैं ना, ये जो ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, गुड मैनर्स होने चाहिए, टेबल एटिकेट्स जिसको हम कहते हैं, टेबल पर खाना खाने वक्त किस तरह से रहना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है ना वो इस टाइम पीरियड में प्रोमिनेंस अब ले रही है. जैसे इससे पहले हमने अब देखो हिस्ट्री में कितनी बड़ी जर्नी हमने देखी है. वी स्टार्टेड फ्रॉम ए पर्सन हु वाज लिविंग इन द जंगल्स इन द फर्स्ट थीम वेयर ही वाज he killed the animals for the fur, that so that he could wear that fur as per the clothes are concerned. But now हम देख रहे हैं क्लोथ्स भी ऐसे पहने जा रहे हैं जहां पर हम देखते हैं जो अब मैचिंग हो रहे हो, जो आप देखते हैं ड्रेसिंग सेंस में कौन सी चीज़ किसके साथ ठीक लगेगी वो अब दे. पहले तो वो बस चमड़ी मिल जाए तो इंसान का बदन ढक सके, सर्दी से बच सके. नाउ वी आर सीइंग दैट उसके अपने पर्सनल चीज़ें हैं, उनको अपना एक सेंस, एक ब्यूटी है, वो चीज़ अब डिपिक्ट हो रही है. नाउ दिस वाज बेसिकली द चेंज इन द माइंडसेट, द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल इज बेसिकली द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. नाउ ये जो आप चेंजेस देख रहे हैं, नाउ क्या ये सारी सोसाइटी में ये चेंजेस आ रही थी?
मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी सोसाइटी से मतलब जो सोसाइटी में जो हमारे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है दैट कंप्राइजेज ऑफ द वुमन, जो हमारे फीमेल सेक्शन है, क्या ये सब ये जो मैं चेंजिंग कंट्री साइड या चेंजिंग जो है कल्चरल ट्रेडिशंस की बात कर रहा हूँ, क्या ये सब के लिए यकसां थी? क्या हर एक अब इक्वालिटी की ज़िंदगी गुजार रहा था? क्या हर एक ये जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे, क्या हर एक के लिए इक्वालिटी थी यहाँ पर? अब क्या जो वुमेन थी, जो फीमेल सेक्शन था सोसाइटी का, उनको भी इक्वालिटी दी जा रही थी? क्या वो भी अपने हिसाब से जो वो चाहती थी वो कर सकती थी? दैट इज़ बेसिकली द एस्पायरेशन ऑफ वुमेन। अब अगर एस्पायरेशन ऑफ वुमेन की बात करें कि वुमेन की जो अपनी एस्पायरेशंस थी या वुमेन का जो अपना खुद कुछ करने का मन कर रहा हो, क्या वो फ्री थी सोसाइटी में करने के लिए? क्या उनका अपना एक इकोनॉमिक या हम कह सकते हैं उनकी एक अपनी शख्सियत थी, अपनी इंडिविजुअलिटी थी? और 16th सेंचुरी में ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ और उन फिलॉसफी की वजह क्या इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, इस जो हमारी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, क्या इनमें भी वो चेंज आई थी? Now before coming to this topic, let's trace out the developments of the woman. जो हम देखते हैं woman की, हम हिस्ट्री की बात करें, throughout history we see in different countries, almost in every region we see, every dynasty, every empire, woman was subjugated in one way or the other way. Woman को जो है woman was not given the equal rights. Woman was always, we can see that she has to strive for her rights. ये हमने हर जगह में देखा है। और वुमेन जो है उसको बहुत ज़्यादा हम देखते हैं बहुत स्ट्रगल उठानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा जो है एंशेंट में जो है बर्डन जो होता था वुमेन पर बहुत ज़्यादा पड़ा है बिकॉज ऑफ द वॉर्स एंड अदर थिंग्स। तो थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते हैं जो एन्जॉय राइट्स या पावर्स है, जो दूसरी चीज़ें हिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल थी, ज़्यादातर जो मेन है उन्होंने एन्जॉय किया है। रादर वुमेन जो है वो सब्जुगेटेड हम कह सकते हैं पर्सन्स थे, वो लोग थे जो हमेशा अथॉरिटी के अंडर रहते थे। Now this was the historical development. Now in the 16th century we were expecting that now with the humanistic and Renaissance philosophy that there would be some sign of change in the society. Women would be given the considerable we can say wealth, or we can say the respect in the society, but that was not the case in the 16th century either. What we witness is that women were excluded from the new ideal of individuality. Now ये जो individuality का concept है, हर एक इंसान का एक अपना individuality होती है ना, women were excluded from it. Excluded in the sense that women did not have the say in the public life. Women did not have the say in the public matters, in the issues pertaining to the state. Now in 16th century in Europe also, in Italy also, we see that women were not given the considerable rights. Women जो है उनको equality नहीं दी जा रही थी, और women जो है they were in a sense dependent on men even in the 16th century, even after the humanistic and Renaissance philosophy. Now men जो होते थे फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वही ज़्यादा पब्लिक लाइफ को डोमिनेट करते थे। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ में जो मेन होते थे वहाँ पर हम पब्लिक पॉलिसी को जो जहाँ पर कोई ट्रेंड जाहिर करना होता था, कोई नई चीज़ लानी होती थी, या जो मेन मैटर्स होते थे सोसाइटी में उनको टैकल करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए जो मेन होते थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से, जो नोबल्स होते थे, वही ज़्यादा पब्लिक लाइफ में हम देखते हैं उन्हीं का ज़्यादा दबदबा होता था। Along with this what we witness is that जो सन होते थे उन्हीं को हम देखते हैं they were given the right to education. उस वक्त भी हम देखते हैं that education was limited to the one section of society, that was for males only, and women were excluded from it. That is the dark reality of the history. That's why we see that in the modern democracy still we see the low literacy rate among females. Even in India what we witness is there is today also there is a low literacy level of females in India. This is because there are certain historical developments at the back. That's why we see that history is very important to trace out all these developments which had happened in the past. तो इस वजह से हम देखते हैं वुमेन की आज की जो सब्जुगेशन है ये आज स्टार्ट नहीं हुई है, बेसिकली इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में उस वक्त कुछ चेंजेस आई होती, हिस्ट्री में उस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हुई होती, वी शुड हैव नॉट, या रादर हम आज वो वक्त नहीं देखते जो हम आज देख रहे हैं वुमेन की जो हायर एजुकेशन में हम देखते हैं, या आज जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं वुमेन की जो बहुत ज़्यादा रेशियो में कमी है, या रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें पार्लियामेंट और दूसरी जगहों की, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं देयर इज़ अ मिनिमल ग्रोथ, या देयर इज़ अ मिनिमल अमाउंट ऑफ
representation of women in these sectors. तो ये क्यों प्रॉब्लम है? Because it has a long history behind it. Now here also यहाँ 16th century में हम देखते हैं कि women were denied the right to education. sons को ज़्यादा education दी जा रही थी, and that was because कि वो later period में हमारा business संभालेंगे और business वगैरह में वही हमारा हाथ बटाएंगे. And business was also this was also made for business was also specific for only the male gender. Now यहाँ females का क्या था? females भी यहाँ पर देखो, उनके साथ भी जो ये biasness थी, ये जो prejudice था, ये जो आपस में जो हम देखते हैं उनको नीचा समझना in a sense, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? Women generally had no say in how their husband should run their businesses. वुमेन को कोई हक नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ पर कोई उनका कोई अपनी राय हो, अपना जो है उनका तरीका या कुछ कुछ अपनी ओपिनियंस दे सके इस हस्बैंड को अपने उस बिजनेस में. तो अगर वो दे भी देती थी, दैट वाज नॉट टेकन सीरियसली इन अ सेंस दैट वो देना और न देना एक ही बात थी. नाउ ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि चलो वुमेन को कोई से नहीं था. बट एक और जो बिजार चीज़ है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज दैट मैरिज वॉज समटाइम्स इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द बिजनेस अलायंसेस. मैरिज इसलिए कभी कभी अपनी डॉटर्स की शादी इसलिए भी की जाती थी बिकॉज ऑफ द बिजनेस अलायंसेस. बिजनेस अलायंस में हमारा कोई पार्टनर बन जाता है, कोई दूसरा होता है, तो वहाँ पर अगर आप उनके साथ कोई ट्रेड यहाँ कोई बिजनेस डील कर रहे हो तो वो उसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यहाँ से शादी की पेशकश करते थे, मैरिज उनके साथ करते थे. तो मैरिज इस सेंस में हम देखते हैं लड़की की शादी इस वजह से की जाती ताकि मैरिज अलायंसेस जो है वो जो हमारे पर्सनल बॉन्ड्स है, ये जो बिजनेस बॉन्ड्स है, बिजनेस अलायंस है, वो स्ट्रेंथ उनमें स्ट्रेंथ पैदा हो जाए. और वुमेन में हम कभी कभी ये भी देखते हैं जो डॉटर्स होती थी, दोज डॉटर्स हु कुड नॉट अफोर्ड देयर डाउरी, अब जो जिनके पास दहेज नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, कभी कभी हम देखते हैं ज़्यादा उनको कहाँ भेजा जाता था? दे वर सेंट टू द चर्च. वो चर्च में भेजी जाती थी और वहाँ पर वो नन बन जाती थी. और बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर एक्सपेंसेस टू फॉर द मैरिज, उनको फिर नन बनने के लिए मजबूर किया जाता था. डॉटर्स वर सेंट टू द कॉन्वेंट्स, जो हम चर्च हैं, इफ़ एडुकेट डाउरी कुड नॉट बी मैनेज. तो ये यहाँ पर देख रहे हैं डॉटर्स को वहाँ पर भेजा जाता था. नाउ यूजुअली अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में जो फीमेल थी, जो आज हम कहते हैं ना हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट जो है, इसी तरह से हम उस टाइम पे देखते हैं हाउस कीपर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन ऑफ दैट टाइम वर हाउस कीपर, ज़्यादातर घर के ही काम करते थे, बच्चों को संभालना, घर के जो इंटरनल अफेयर्स होते थे वो हम देखते हैं वुमेन वर डूइंग दोज थिंग्स. नाउ कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं. रिच मर्चेंट्स की बात करें, बैंकर्स की बात करें, उन फैमिलीज में थोड़ी हम कह सकते हैं से थी वुमेन की. इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स जो वुमेन थी उनकी पोजीशन थोड़ी हम कह सकते हैं समहाउ डिफरेंट थी. ना वो कैसे थी कि कुछ हम देखते हैं बिजनेस मर्चेंट्स जो होते थे, बिजनेसेस जो होते थे, उसमें कभी कभी हस्बैंड जो है किसी दूसरी जगह जाता था, कोई ट्रिप पे जाता था, कोई दूसरी ट्रैवल करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ता था. तो उस वक्त वुमेन जो है उनके बदले वहाँ पर वो उस बिजनेस को संभाल लेती थी. दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्शन. हम इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि अगर इनके साथ अच्छा होता तो सारी सोसाइटी ही ठीक हो. दैट्स बेसिकली एन एक्सेप्शन इन इट. एट द मीन टाइम व्हाट वी विटनेस इज, ये हम देख रहे हैं कि अगर कोई बैंकर है उसकी या कोई मर्चेंट है उसकी डेथ हो जाती, तो उसके बाद अगर उसने कोई छोड़ा होता तो वुमेन एट दैट टाइम कुड लुक आफ्टर दैट बिजनेस. नाउ दीज वर द टू एक्सेप्शंस वेयर वुमेन वर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कंसिडरेबल अथॉरिटी और सम सॉर्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. दे वर नॉट द इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर मेल पार्टनर्स हियर. नहीं तो ये थी यहाँ पर. नाउ ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वुमेन की पोजीशन, तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ द वुमेन वर हैविंग एट दैट टाइम. बट ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी में क्या वुमेन का भी कोई कंट्रीब्यूशन था? चलो अगर हम कह सकते हैं थोड़ा सा ही 1-2% ही सही, क्या कुछ था? Now the sources of that period reveal that there were some women who were intellectually very creative and were very sensitive towards these topics, and they वो जो है खुले तौर से इस चीज़ को हम क्या क्रिटिसाइज करते थे दैट वुमेन आर बीइंग डिनाइड द फाइनेंशियल, जो उनकी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल जो है अथॉरिटी जो है वो जो है वो उनको डिनाई की जाती है. लाइक वहाँ पर है फ्यू वुमेन्स हु वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव वेयर. अब कुछ वुमेन जो है हम दो का यहाँ पर जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी इन द सेंस, और इस चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रही थी, जो ये यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है
वुमेन को सब्जुगेट किया जा रहा है, इसको हम देख रहे हैं ये यहाँ पर ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पर ये वेनेटियन है कैसेंड्रा फेडली, ये क्वेश्चन करती है द आइडिया दैट वुमेन वेर इनकेपेबल ऑफ अचीविंग क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर। तो एक और टैबू बनाया गया था वुमेन से रिलेटेड, दैट वाज कि वुमेन आर इनकेपेबल, वुमेन को वो कैपेबिलिटी नहीं है वो एक ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर बन सके, वो एक अच्छा ऐसी एजुकेशनिस्ट बन सके ऑफ दैट टाइम। तो इस पर बहुत सारे मेल स्कॉलर्स ने लिखा था कि वुमेन आर इनकेपेबल। नाउ दिस फैडली इज क्वेश्चनिंग दैट आइडिया, क्रिटिसाइजिंग दैट आइडिया दैट व्हाई आर वुमेन इनकेपेबल, व्हाई यू थिंक सो दैट वुमेन आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग्स। इट्स बेसिकली योर वी कैन से द प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग दैट यू आर नॉट थिंकिंग इन दैट वे। वुमेन आर कैपेबल, दे कैन डू they can be great writers of humanistic also, Renaissance also, and other aspects also. Like he is proving herself that I am capable of writing. Why are you saying that women are not capable of doing all this? So he also criticized the Republic को भी criticize किया for creating highly limited definition of Republic. अब ये जो है ना रिपब्लिक जो वहाँ पर थी, मैंने बताया था आपको जैट इटली में कुछ रीजन्स रिपब्लिक भी थे। रिपब्लिक मतलब वहाँ पर पावर डिवाइड था और जो है डिफरेंट ट्राइब्स जो है इक्वली रूल कर रहे थे। तो रिपब्लिक में भी ये उनको भी क्रिटिसाइज कर रही थी। उन्होंने भी रिपब्लिक में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वहाँ पर वुमेन को डिमीन किया गया था, लो लेवल पर रखा गया था। इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये क्रिटिसाइज करते हैं रिपब्लिक को जो आपने हाईली लिमिटेड डेफिनेशन रखी है फ्रीडम की, वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या फ्रीडम जो है वो सिर्फ मैन को है और वुमेन, क्या वुमेन को अपनी फ्रीडम नहीं है, अपना प्रोफेशन अपना ऑक्यूपेशन चूज करने की फ्रीडम नहीं है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन करने वाली उस टाइम की जो एक ग्रेट ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर थी दैट इज कैसेंड्रा फेडली। सो शी इज़ द फर्स्ट। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट जो है इसाबेला डीएसटी, ये जो है इसका भी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्टिकोट्सटी होती है जिसका नाम मंटुआ होता है। नाउ शी रूल्ड मंटुआ, उसका जो हस्बैंड है वो कहीं चला जाता है और इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड शी रूल्ड मंटुआ एट दैट टाइम। तो ये जो है वुमेन का रूलर बन जाना ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। और ये भी हम देखते हैं वुमेन राइटिंग्स जो हो वहाँ पर इनके साथ साथ जो दूसरी वुमेन ने जो राइटिंग्स लिखी है उन्होंने इस चीज़ में जो बात की है वो हम देखते हैं। उनका जो मेन मकसद था वो ये रिवील करता है, इट रिवील्ड राइटिंग्स रिवील्ड देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव द इकोनॉमिक पावर एंड प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल एज द राइट टू एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें जो वुमेन उनकी राइटिंग से भी पता चलता है कि वुमेन वेर स्ट्राइविंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर इट कि हमें इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ख़त्म होनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स और एज वेल एज ये जो एजुकेशन है वो होना चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं कि वुमेन जो है उनको ये चीज़ खुद समझनी है अपनी जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, या ये जो हम देख रहे हैं सब्जुगेशन को ख़त्म करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स अराउंड सोसाइटी उनके रिलेटेड है, टैबूज और दूसरी चीज़ एसोसिएट की गई है, उनको ख़त्म करने के लिए वुमेन शुड रेज देयर वॉइसेस। जो हमारा फीमेल सेक्शन है उनको खुद ही अपनी जो है सोसाइटी में अपना जो है नाम जो है कमाना है और जो ये टैबूज डिफरेंट है उनको तोड़ना है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वुमेन जो खुद से उठें एंड दे शुड रेज देयर वॉइस, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे द एस्पायरेशंस ऑफ वुमेन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। If you have any questions you can write in the comment section. Inshallah in our next lecture we'll be discussing some other aspects of the changing cultural traditions, that is the debates within Christianity. तो Christianity में कौन कौन सी changes आई है, we'll be discussing about that. अब कल से अब इंशाल्लाह अगर ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं तो इंशाल्लाह दैट विल बी मच बेटर फॉर अस। अब यहाँ तक जिस तरह से हो पाया था इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वी डिड आवर बेस्ट, रेस्ट आपको ही पता है किस तरह से आपने लिया है इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और थैंक यू सो मच जो आपने इन जो हम कह सकते हैं इन वीडियो लेक्चर्स को बियर किया, सुना। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इंशाल्लाह सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।